Hello, students. Welcome back to the lecture on approaches of comparative politics. तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के उपागमों पर लेक्चर में आप सबका फिर से स्वागत है। और हमारे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि एक उपागम क्या होता है, एक अप्रोच क्या होता है, उस अप्रोच का अर्थ, उसका मीनिंग, उसका डेफिनेशन, उसकी परिभाषा हमने देखी थी। हमने अप्रोचेस का क्लासिफिकेशन यानी कि उपागमों का वर्गीकरण भी देखा था। और जब हम उन दोनों के वर्गीकरण की ओर बढ़ रहे थे, हमने देखा कि सबसे पहला वर्गीकरण होता है कि कुछ उपागम पारंपरिक कहे जाते हैं और कुछ उपागम आधुनिक कहे जाते हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि ये बदलाव, ऐसा बदलाव क्यों आया और ये बदलाव वास्तव में था क्या। In our previous lecture, we had examined what is an approach, what is its meaning, what is its definition, what are the basic classification regarding approaches, and when we say that the first classification says that the approaches are either traditional or modern, so what were the factors responsible for this kind of change, and what exactly was this change of study from traditional approaches to modern approaches. Now, continuing with that, on your screens you can see some of the basic characteristics of traditional approaches and modern approaches. आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर परंपरागत एवं आधुनिक उपागमों के कुछ लक्षण देख सकते हैं, और यही लक्षण जो है इन दोनों के मध्य के अंतर भी कहे जा सकते हैं. These characteristics are also called as the differences between these two approaches. तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम परंपरागत उपागम के लक्षण देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच. सबसे पहले आता है नॉर्मेटिव. नॉर्मेटिव का मतलब ये है कि हम अपने अध्ययन द्वारा या जो परंपरागत उपागम रहे वो कुछ मानक, कुछ नॉर्म्स, कुछ नियम हैं जो राजनीतिक संस्थाओं के लिए या राजनीतिक व्यक्तियों के लिए निर्धारित करते हैं. सो ट्रेडिशनल अप्रोचेस एस्टैब्लिश सर्टेन नॉर्म्स for political institutions and for people who are running those political institutions. अब जैसे यदि यहाँ पर उदाहरण दिया जाए तो हम उदाहरण ले सकते हैं पाश्चात्य जगत से प्लेटो का. प्लेटो ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द रिपब्लिक, और रिपब्लिक में उसने एक आदर्श समाज की, एक आदर्श राज्य की, आदर्श शिक्षा प्रणाली की और एक आदर्श राजा की अवधारणाओं का प्रतिपादन किया. तो उसमें जब प्लेटो अपने आदर्श समाज के बारे में बात करता है तो प्लेटो कहता है एक आदर्श समाज में 3 वर्ग होने चाहिए. वो 3 वर्ग अपने अपने कार्य को निष्ठापूर्वक करें, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करें. फिर उन 3 वर्गों के लोगों के लिए अलग अलग तरह की जीवन शैली उसने बताई. तो बेसिकली यहाँ पर प्लेटो क्या कर रहा है, कुछ नियमों का प्रतिपादन कर रहा है, और जब व्यक्ति उन नियमों का पालन करते हैं तो प्लेटो के हिसाब से एक आदर्श राज्य की स्थापना होती है, एक आदर्श समाज की स्थापना होती है. तो यहाँ पर प्लेटो का जो पूरा जोर रहा, जो पूरा एम्फेसिस रहा, वो उन नियमों के पालना पे रहा. Now when we are discussing normative characteristic of traditional approaches, normative means setting up certain norms or setting up of certain rules which are to be followed if you want to attain a certain ideal kind of system. Now if I want to quote an example, then I would tell you about Plato. Plato had written a book called The Republic, and in his book he has mentioned about what an ideal society should be like, what an ideal state should be like, what an ideal education system should be like, what an ideal king should be like.
So, for example, when Plato is talking about an ideal society or an ideal state, Plato says that in an ideal society, there are basically three classes. And these three classes perform their functions sincerely. They do not interfere in the functions of each other, and thus a perfect harmony or perfect balance can be attained in a society. So, what Plato is doing basically here is that he is setting up norms which should be adhered by all these people whom he has divided into three classes, and for each class he has given different rules, different norms, and when people follow those norms, we can attain a kind of ideal society. So this is the meaning of normative, that certain norms are prescribed. नॉर्मेटिव का मतलब, या जिसे हम कहें नियमात्मक का मतलब यही है कि कुछ नियम कायदे कानून जनता के लिए बना दिए गए और जनता को उनको फॉलो करना चाहिए ताकि समाज एक अच्छा समाज बन सके। दूसरा जो लक्षण आता है परंपरागत उपागमों का, वह है कि वे मूल्यात्मक होते हैं। मूल्यात्मक का अर्थ है कि कुछ मूल्यों को हम बाकी सारे मूल्यों या हम कहें कि मूल्यों की प्रधानता है। वैल्यूज आर गिवन सर्टेन काइंड ऑफ प्रोमिनेंस। जैसे अगर हम फिर से प्लेटो को यहाँ पर बात करना चाहें तो प्लेटो ने एक मूल्य के ऊपर बहुत जोर दिया है और वो मूल्य है न्याय। वो कहता है न्याय जो है, न्याय एक ऐसा मूल्य है जब वो हमारे जीवन में उतर आएगा तब हम, या यदि हम उस न्याय के मूल्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली, हम स्वतः ही एक आदर्श समाज के प्रति कदम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो उसने न्याय को व्यक्तिगत स्तर पे भी बताया है कि एक व्यक्ति में 3 प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं और जब वो उन तीनों प्रवृत्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित कर लेता है तो वो स्वयं के साथ न्याय करता है। और यही 3 प्रकार की प्रवृत्तियां समाज में 3 वर्गों के रूप में परिलक्षित होती हैं और जब उन 3 वर्गों के बीच में सामंजस्य स्थापित हो जाता है तो एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना होती है। तो प्लेटो ने एक मूल्य पर बहुत जोर देकर एक पूरी पुस्तक की रचना कर डाली और वो मूल्य था न्याय का। तो इस प्रकार से अलग अलग विचारकों ने अलग अलग मूल्य को प्रधानता दी और इसलिए हम कहते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोचेस या परंपरावादी उपागम जो है वो मूल्यात्मक है, उनका जोर एक विशिष्ट मूल्य पर ज्यादा रहा है। Now, when we say that traditional political science is that the approaches to traditional study or traditional approaches of comparative politics are value laden, we are trying to say that those thinkers who have developed these approaches, they have given importance to a particular value in their study. Again, quoting the example of Plato, Plato in his entire work emphasizes on one particular value, and that value is of justice. Now he, you can say, describes justice to exist on 2 levels. The first level is of individual level, where we can say that every individual has 3 elements, and when he is able to strike a balance between those 3 elements in his soul, then a person can attain justice in his life. Similarly, he forms or he has propounded the concept of 3 classes based upon these 3 elements of soul, and when when there is a balance, or we can say when a balance has been struck between these 3 classes, we can say that that on the level of society justice has been achieved. So
Similarly, there are many thinkers who have propounded their entire ideology centering around one value. So, this is what we mean by when we say that traditional approaches are value laden. तीसरा जो मुख्य लक्षण यहाँ हम लिख रहे हैं वह है, तीसरा मुख्य लक्षण परंपरावादी उपागमों का है, हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव एंड पर्सपेक्टिव। यानी कि ये कैसे हैं? यह है ऐतिहासिक, डिस्क्रिप्टिव यानी कि वर्णनात्मक, और प्रिस्क्रिप्टिव यानी कि उपदेशात्मक। देखिए, जब हम इतिहास का अध्ययन करके आगे कुछ बताने की कोशिश करते हैं तो वो हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक उपागम हो जाता है। ये सबसे ज़्यादा कॉमन या सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला उपागम है कि यदि आप भविष्य के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप अतीत में झांक कर देखते हैं, आप हिस्टोरिकल स्टडी करते हैं। और ये आज भी एक बड़े स्तर पर, एक बहुत बड़े लेवल पर ये हिस्टोरिकल अप्रोच या कि ऐतिहासिक उपागम जो है आज भी एक बड़े स्तर पर अपनाया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें, मैकियावली की बात करें। मैकियावली एक मध्ययुगीन विचारक था और उसने अपने से पहले जितने भी विचारक थे उन सबका अध्ययन किया और उन सबकी विचारधारा से प्रेरित होकर उसने अपनी विचारधारा का विकास किया। तो ये एक तरीके से ऐतिहासिक उपागम हो गया, या हिस्टोरिकल अप्रोच हो गया। तो उसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव यानी कि वर्णनात्मक। जैसे मैं फिर से अगर आपके साथ प्लेटो का एग्जाम्पल कोट करूं, तो प्लेटो ने जो अपनी पुस्तक लिखी द रिपब्लिक, रिपब्लिक बहुत ज़्यादा वर्णनात्मक है और उसमें प्लेटो ने पूरा वर्णन किया है कि एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए। उसने पूरा वर्णन दिया है। वो सिर्फ ये नहीं कहता कि आदर्श समाज में 3 वर्ग होते हैं, बल्कि उन वर्गों के कर्तव्य क्या होते हैं, वो वर्ग किस आधार पर बने जाएंगे, फिर समाज में कैसे उनमें सामंजस्य स्थापित किया जाएगा, किस प्रकार से शिक्षा प्रणाली बनाई जाएगी और वो ऑपरेट करेगी। तो प्लेटो ने बड़े विस्तार से वर्णन किया है, इसलिए हम कह सकते हैं। और न सिर्फ प्लेटो, जितने भी परंपरावादी विचारक रहे, उन्होंने बड़ी वर्णनात्मक किताबें लिखी हैं। और आप सिर्फ पश्चिमी जगत में मत देखिए, भारत में भी जैसे मनु हुए, कौटिल्य हुए, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा वर्णन अपनी अपनी पुस्तकों में अलग अलग चीज़ों का किया है। और सबसे अंत में पर्सपेक्टिव यानी कि उपदेशात्मक। जैसे अगर हम बात करें फिर से प्लेटो का ही, अगर मैं आपको उदाहरण दूं, तो प्लेटो जब एक आदर्श राजा की बात करता है तो वो कहता है कि कि एक आदर्श राज्य एक आदर्श राजा द्वारा ही स्थापित किया जा सकता है। और ये राजा वो राजा होगा जो 50 साल की उम्र तक तो पढ़ता ही रहेगा, और इतना अध्ययन करने के बाद जब वो राज्य की बागडोर अपने हाथ में लेगा तो उससे कोई गलती नहीं होगी। तो ये एक उपदेशात्मक बात है कि राजा के लिए अध्ययन करना, पढ़ते रहना बहुत जरूरी है। Now coming up to the last characteristic of traditional approaches, they are historical. Now by history, it means when we try to study politics from the point of view of history. For example, there was a thinker called Machiavelli who developed his entire political thought by studying his predecessors, or you can say political thinkers who existed before him, and taking certain things from every thinker that he had read, be it Plato, be it Aristotle, be it Saint Augustine. सबसे कुछ कुछ पढ़ के Machiavelli developed his own political thought. So this is a historical method. Then descriptive means giving a description. Again, to quote Plato, Plato has given a detailed description how things would be in his ideal state or in his ideal society. He has described how 3 classes would function, how 3 classes would be formed, and how education system will be evolved. So he has given each and every detail of what he is trying to propound.
And finally, perspective. Perspective means you are prescribing something, you are telling someone to do something. Again, to quote from Plato, when Plato says that an ideal king is one who is thoroughly educated, who has devoted nearly half of his life to learning. It is, in a way, propounding an essential characteristic for a ruler, that a ruler must be well read, a ruler must be well educated. So, students, we will continue in our next video. Thank you so much.